उन लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा जो कि आपसे बात कर सके। अब आप दूसरे तरह से सोचिए, अगर वो आ जाते और मेरे अधिकारीगण यहां मौजूद नहीं रहते, फिर क्या कहते वो कि भारत ने बुला लिया और फिर लोग मिले नहीं। तो मेरे लिए तो दोनों तरफ से परेशानियां थी। तो इसलिए यह सोचा गया कि अच्छा, ये भी नहीं था कि ये कोई टाइम सेंसिटिव इशू था। ये बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि समय से इसमें कोई मतलब नहीं था। तो एजेंडा भेजे, हम कोई भाग नहीं रहे हैं इससे। एजेंडा भेजे एक नियत समय में, जो कि दोनों को सहूलियत हो, जिसमें उस नियत समय पर बात करने को हमेशा हम तैयार हैं। संजय जी, आपने बोला कि हम लोगों ने 26 लोगों के प्रत्यार्पण की बात की। डू यू थिंक दैट दे हैव टेकन इंडियन रिक्वेस्ट वेरी लाइटली, or in fact they have ignored the request, or in fact the dossiers shared by you were also not taken very seriously? So this indicates that there is some kind of a protection these elements are getting. See, what comes to my mind is that there is inaction. Now, inaction could be described as both the ways you have described, but the inaction means I will take it as that you are not interested in at all. Do you think that Indian requests are just in the light vein? We have gone through a due process. We have gone through our own scrutiny. We have collated and collected the information and evidence and shared with you under a legal treaty, MLAT. So therefore, even after that, if a fellow democracy doesn't listen to us, doesn't understand, is not ready to discuss even, I take it something amiss. Sir, you mentioned about in one of the interviews that Goldie Brar name was there, and it suddenly vanished from the paper which you shared. So can you throw some light on this? See, when we were discussing with them on the government channel, we have various channels active with Canada. So we shared that the name of Goldie Brar, who is also on our list for extradition, and Goldie Brar is a gangster himself, but he also is connected to various other gangs. So he has both the activities there. So when that happened, there is in the Canadian system, the RCMP does not bring out any wanted list, but there is a civic organization known as BOLO. They, with a back channel consultation with, I believe, the authorities in Canada, they take out 25 most wanted, 10 most wanted people list. So in their list, Goldie Brar was there. Then next time when we had a look at the list, it was all gone. So what happened? If a person was on the most wanted list, even through a civic organization, and next time when the same list is seen, he is not there, there are only two things which I can make out from it. He has been arrested and sent back to India, and therefore he is no more wanted, or he has been deliberately missed out. So we can draw our own conclusions from there. Sir, do you squarely blame Mr. Trudeau for the downtrend in our relationship, and do you think he's just doing it for votes? See, cater to certain category there. See, as the leader of the country, elected leader of the country, Mr. Trudeau is at the helms of all affairs of Canada, including foreign policy and foreign relations. If I do not see results coming out to the advantage of Canada in their relation, then certainly I'll have to blame the person who is the helms of all the affairs. Sir, the person of interest जो word use किया गया है, इसको आप डिप्लोमेटिकली अगर आप समझा सकें कि क्या ऐसा तो हमने कभी मतलब इस तरह की कार्रवाई डिप्लोमेट्स पे होती बहुत रेयर देखी जाती है, तो आप किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या चाहते हैं, लाइक आप रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा इसके बाद? देखिए, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो मुख्यतः होता है कि आपसे प्रश्न किया जाए किसी एक संबंध में, तो वो तो ट्रबलिंग है ही कि आप एक विदेशी रिप्रेजेंटेटिव को, हाई कमिश्नर को या एम्बेसडर को आप ये कहते हैं कि आप हमारे पुलिस अथॉरिटीज़ के प्रश्नों का जवाब दें, यह अनुचित है। डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस भी ये देखा नहीं जाता है आमतौर पे। उसके बाद
हमारी सरकार ने कहा कि हम आपके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को तो नहीं उठाएंगे, और कोई भी सरकार नहीं उठाती है, आप वापस चले आए। तो हमें और हमारे 5 दूसरे सहयोगियों को भारत ने विड्रॉ किया, वापस आने को कहा, कॉल बैक किया। अब जब ये सूचना यहां पर दी गई, इनके उस समय जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे, तो उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी होगी, वो भी करियर डिप्लोमेट हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी होगी। तब अचानक वहां पर अंदर में क्या बात हुई मुझे भी नहीं पता, लेकिन तब उन्होंने हम लोगों को अवांछित व्यक्ति के रूप में घोषित कर दिया, जिसे डिप्लोमेटिक टर्म में कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा। तो हम लोग पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए, ये 6 लोग। इसका अर्थ यह है कि एक नियत समय जो वो बताते हैं, इस केस में जो कनाडा बताएगा, उस नियत समय के अंदर अगर आप उस देश को नहीं छोड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि आप अब डिप्लोमेट नहीं हैं, और उस देश के कानून के तहत जो भी आप पर एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। तो आपको लगा था ऐसी कुछ साजिश हो रही है आपको अरेस्ट करने की भी वहां पे? हो सकती थी, साजिश हो सकती थी, लेकिन जब तक मेरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तब तक एक प्रजातांत्रिक देश से तो मैं ये आशा नहीं करूंगा कि वो इस तरह का कोई भी गैरकानूनी स्टेप लेगा। सर, प्रजातांत्रिक देश हम बोलते हैं, आपको लगता नहीं कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत सेलेक्टिवली यूज किया जाता है? उन्होंने हाल में कोई पेपर निकाला जिसमें वो इंडियन मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं इन रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल कहना है, सही है। मैं अंग्रेजी में अगर कहूं तो ये डबल स्टैंडर्ड है, और अगर हिंदी में कहूं जो कि बहुत बुरा शब्द है, ये दोगलापन है। और इसके कारण उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। जब भारत के सबल मीडिया पर्सन्स जितने थे वहां पर उन्होंने कुछ कहा, तो हमारे 20 लोगों को उन्होंने कह दिया कि ये इन्फ्लुएंस एक्शन है। तो फिर जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? हमारे यहाँ क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? हमारे यहाँ क्या मीडिया को फ्रीडम नहीं है? उन्हें भी ये बैठकर विचार करना चाहिए। हम लोग दोनों फेलो डेमोक्रेसीज हैं, हम लोग दोनों को देशों के बीच का रिश्ता अच्छा रखना है। एक पर्टिकुलर रेजीम या गवर्नमेंट के होने से अपने देशों का रिश्ता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सर, आरसीएमपी को वो लोग कहते हैं कि एक सोवरेन बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो आप जब बोलते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो आरसीएमपी तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है, उस पर आपको कुछ कहना है? देखिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक अनुसंधान करने वाली, जांच करने वाली एजेंसी है, तो इसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन हमने जो देखा वो उभर कर नहीं आता है कि ये इंडिपेंडेंट है। ये जो भी इनके पॉलिटिकल आका हैं, जो भी इनके राजनीतिक आका हैं, उनकी बात ये सुनती है और इंडिपेंडेंस को सेलेक्टिवली रखती भी है अपने पास। लार्जली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और इनके इन्वेस्टिगेशंस लार्जली इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको मैं उदाहरण अगर दूं, तो अगर ये आप मान लें कि कोई एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें ये किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये उस अनुसंधान, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत जो भी उसमें मामले सामने आए हैं उसको कभी भी बाहर पब्लिक में अनाउंस नहीं करता है। ये इंडिपेंडेंस है। और केवल जब पकड़ा जाता है, जब सभी सबूत इनके पास हैं, तब उसका नाम बताया जाता है। लेकिन हमने भारत के केस में तो यह नहीं देखा। भारत के केस में तो प्रधानमंत्री वहां के पार्लियामेंट में खड़े होकर बगैर किसी सबूत के, जो उन्होंने बाद में माना कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, तो बगैर किसी सबूत के आप एक देश को, इंडिविजुअल तो छोड़ दीजिए, एक देश को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे गलत एक मैं कूटनीतिज्ञ हूं तो बहुत गलत शब्द तो इस्तेमाल करूंगा नहीं, लेकिन यह बहुत अच्छी बात नहीं है। सर, आपने उनको अनप्रोफेशनल भी बोला और आपने कहा कि बैकस्टैबिंग हुई, तो इसको आप बैकस्टैबिंग की एक्ट ही मानते हैं? कनाडा के तो रूल्स नहीं माने गए? फिर से वही, मैं कनाडा को अलग कर रहा हूं और अभी की जो सरकार है उसको अलग कर रहा हूं। कनाडा हमारा बहुत अच्छा मित्र था, है और रहेगा। हम लोग दोनों फेलो डेमोक्रेसीज हैं, हम लोग कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस में अच्छे रोल्स हैं हम लोगों के, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि अभी जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर उस तरह से आप देखिए तो एक जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस हैं
उसमें इसी मामले को बहुत अलग अलग ढंगों से भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता था. So there's a huge Indian diaspora there, and there's a huge population. People-to-people contacts are very robust. Now we see the relations getting bad, in fact bad to worse. So how do you assure or reassure people that things are going to calm down and may come back to normal? And what will be the parameter, or what can be the boundary line, to reach there? See, it is very difficult for me, looking at the situation now, to say that everything will be normal, because things are not normal. Indo-Canadians are being threatened by the hooligans who are Khalistani goons. They are Khalistani terrorists and extremists. They go in our society of peace-loving Indo-Canadians and threaten them. They go to our places of worship, vandalize them. So if that is being tolerated by the system, the present system in particular, then how can they assure them for normalcy? So probably someone will have to sit down, look at it. Why is it unfair for those Indo-Canadians who believe in a certain religion, in a certain faith, and want to live peacefully and contribute to the growth and development of Canada, being threatened